Shruti is working as assistant professor in AIMS Patna and a proud mother of two children. The little one is on the spectrum. She wants to share her experience and knowledge with all the parents who are out there struggling with their special child somewhere or not aware. Miss Vanna Gautam, she is also a proud mother of a boy who is on the spectrum, and she is a computer science graduate who was working in an IT firm, and now she is working as a computer teacher in Sunrise Learning. She's using her knowledge to help students and parents in communication, assistive technology, alternative tools for communication. So, welcome, Dr. Shruti Anna. Hi, Let's hi. hear of Okay, you. thank you so much. Hi, good evening. Good evening. I see there's a very, very good turnout of people. So I'm Dr. Shruti, and like Ruchi said, I'm the mother of a wonderful, wonderful boy on the spectrum. And I began my journey जब Raghav started showing signs of speech delay. जैसा कि maximum parents के साथ होता है. And I'd like to begin by saying that good communication is the bridge. It's actually the bridge between confusion and clarity, clarity or peace. So I welcome and applaud all of you who are here today. For all of you are pioneers. हम सब इकट्ठा हुए हैं to talk and learn about something जो हमारे बच्चों की जिंदगी में sea change ला सकता है. बच्चों की जिंदगी में ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में भी as parents and as teachers और सोसाइटी में भी क्योंकि सोसाइटी को ऑप्टिमली फंक्शनिंग और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स देने की कैपेसिटी है आवाज में. सो वी आर हियर टू लर्न अबाउट एंड क्लियर मिथ्स अबाउट आवाज which is an app that has the potential to revolutionize the way our children communicate. बल्कि हम कह सकते हैं that it is kind of technology at its best. और टेक्नोलॉजी ऐसे लोगों के हाथ में जो कि टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके हाथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी रखता है. एक ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी एक मेटामॉर्फोसिस ला रहा है, वैसे टाइम पे हम अपने बच्चों के साथ डिस्क्रेडिट करेंगे अगर हम इतना इम्पोर्टेंट टूल और इतना इम्पोर्टेंट साइंस का इन्वेंशन उनके हाथ से दूर रखेंगे. So we are here to learn from Vanna ma'am and a number of parent testimonies that what, how, when, where and why Awaaz, which is basically a communication app and a boon of technology, इसमें कितना power है to boost speech and communication. ये सीखने, समझने और सुनने उन लोगों से जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है बहुत फर्स्ट हैंड आज हम इकट्ठा हुए हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी प्राउड एंड अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. अपने लॉन्च के समय से ही के बाद से ही आवाज ने पूरी दुनिया में बल्कि आई वुड से अक्रॉस द ग्लोब लाखों लोगों को हेल्प किया है. मेरे बेटे को भी बहुत हेल्प मिला था फ्रॉम अ टाइम व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट विद जस्ट अ फ्यू वर्ड्स से टू अ चाइल्ड जो आज के डेट में मुझे स्टोरी भी बता पाता है. आवाज हमें बहुत बहुत दूर तक लेके आया है. सिमिलरली वंदना मैम के साथ भी सक्षम कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, स्पेशली कम्युनिकेशन और इंडिपेंडेंस के रिगार्ड में. सो वील पहले हम वंदना मैम से सुनते हैं कि आज के डेट में उनको सक्षम के कम्युनिकेशन में स्पेशली कैसे कैसे आवाज ने हेल्प किया है. मैम. Thank you, Dr. Shruti. It's my pleasure to share the journey of Awaaz. Awaaz is very important part of my and Saksham's life. Actually, it has connected me to many wonderful children and many wonderful people, and it has given a powerful tool for my child. जो कम्युनिकेशन का जो उसने सुपर पावर दिया है मेरे बच्चे को. वेरी वेरी थैंकफुल टू आवाज टीम फॉर गिविंग दिस सुपर पावर टू माय किड एंड टू ऑल द किड्स और जो बच्चों को जो नॉट. कैन समबडी प्लीज म्यूट हियर. So I would
give a short. I would like to talk about my journey, my Awaaz journey first, and then we'll talk about the other things about Awaaz. It all started in 2015. 2015 की बात है. My son was, I can say, he was non-verbal. He had words. He could say biscuit, पानी, but not meaningfully. तो वो मीनिंगफुली नहीं थे. वो जब भी कुछ बोलता था ना, तो वो अपने आप से बोलता था. वो पानी पीने के लिए पानी नहीं बोलता था, बिस्किट खाने के लिए बिस्किट नहीं बोलता था. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ऑलमोस्ट नॉन वर्बल चाइल्ड. And another child, which we were homeschooling. Most of the people who know me, they know that I did homeschooling for my child for around more than 3 years, and we were 2 parents. हम 2 पेरेंट्स थे जिन्होंने होम स्कूलिंग किया. तो मेरे बच्चे के साथ एक और मेरा बेटा है रमित. वो तो हम दोनों, मतलब मेरी फ्रेंड का जो बेटा है रमित, वो और मेरा बेटा सक्षम, हाँ दोनों ही नॉन वर्बल बच्चे थे. अब हम उन्हें पढ़ाते थे तो कई बार बहुत सारी बिहेवियर्स आते थे, फ्रस्ट्रेशंस होती थी, वो कई काम नहीं करना चाहते थे. तो हमें समझ नहीं आता था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. जब हम पढ़ाते थे तब हमें ये नहीं पता चलता था कि उनको वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है. हम उनसे क्वेश्चन कैसे पूछें, हम ये चीज़ कैसे पता करें कि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. तो उस टाइम मेनली जो पर्पस था, जो मैंने आवाज के लिए सर्च किया, उसका मेन पर्पस ये था कि उस टाइम कम्युनिकेशन हमारे दिमाग में नहीं था. बहुत अपने मतलब अपने दिल से बता रही हूँ कि उस टाइम कम्युनिकेशन हमारे लिए पर्पस, हमारे को बस ये था कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो इन्हें समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है. कम्युनिकेशन केम लेटर. तो वैसे ही हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं जिसके थ्रू ये हमें बता पाए कि इनको कितना समझ में आ गया और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर दे पाए. ये ढूंढते ढूंढते गूगल किया तो आ गया आवाज. हाँ, बीइंग एन IT पर्सन, हर चीज को इंस्टॉल करना और हर चीज को ट्रायल करना, तो वो तो मेरा मतलब कोई चीज छोड़ती नहीं हूँ मैं. जो भी मुझे लग जाता है कि अच्छा इसको भी इंस्टॉल कर लो, उसको भी इंस्टॉल कर लो, ऐसे ही जैसे भी बहुत सारी एप्स मैं इंस्टॉल करती हूँ वैसे ही मैंने आवाज को इंस्टॉल किया. ट्रायल वर्जन, बाय नहीं किया, ट्रायल वर्जन इंस्टॉल किया 15 दिन का. एंड 15 दिनों में हमने देखा कि बच्चों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है. अभी हम केवल क्वेश्चन आंसर तक ही थे. तो जब हमें लगा कि इनका तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर हमने एक और आईपैड पर एक और ट्रायल ले लिया 15 दिन का. तो इस तरह 1 महीना हमारा निकल गया. तो जब पहले तो क्वेश्चन आंसर में हमें जब अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तब हमने सोचा कि अच्छा अब इन्हें हम ऑफर करते हैं जब ये गुस्सा होते हैं, जब ये काम नहीं करना चाहते, हाउ आर दे फीलिंग. ट्रायल था, कुछ नहीं आता था हमें, आवाज के बारे में कुछ नहीं पता था, आवाज क्या है, क्या करता है, कुछ नहीं पता था उस टाइम तक. 15-20 दिन की बात है जब हमने आवाज स्टार्ट किया. और इन्होंने हमें स्पेशली रमित, उसने हमें बताना शुरू किया कि वो आज गुस्सा है. किससे गुस्सा है ये भी बता दिया, मम्मी से, पापा से. किससे गुस्सा है ये भी बता दिया. और क्या करना चाहता है, ब्रेक लेना चाहता है थोड़ा, ये भी बता दिया. तो हमें लगा कि अरे वाह, ये तो बता रहे हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग. सो व्हाट कैन बी, ये तो हम ढूंढ रहे थे ना, कम्युनिकेशन ही तो हम ढूंढ रहे थे अभी तक. तो तब हमें ये रियलाइज हुआ कि आवाज कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन. देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट आवाज. पहले तो हम ट्रायल ही करते रहे, इधर उधर उधर इधर बच्चों के साथ. देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट आवाज. देन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, गूगल पर सर्च किया, रेड आर्टिकल्स अबाउट आवाज. एंड देन वी टुक अ डिसीजन कि यस, this is one of the tool which is going to be the communication tool for both the kids. तो हमने डिसाइड कर लिया. इस तरह करते करते अप्रैल में हमने, अक्टूबर में वी स्टार्टेड डूइंग द ट्रायल्स. एंड वही
मतलब बच्चों के साथ पढ़ना और उसके बारे में सर्च करना, और इट टुक अराउंड 4-5 months टू डिसाइड कि यस दिस इज द थिंग विच वी विल टेक इट एज अ कम्युनिकेशन टूल। जब हमने इसको कम्युनिकेशन टूल में यूज करना शुरू किया तो हमने स्टार्ट किया डेली कन्वर्सेशन से, जहां पर हम मॉर्निंग में बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करते थे कि आज तुम क्या महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज दिन कैसा है, मौसम कैसा है, तुम्हें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तुमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं आर यू लाइकिंग दोज क्लोथ्स। ऐसी चीजें ली जो उनके इंटरेस्ट की थी, जो उनके साथ कनेक्टेड थी। तो ऐसे हमने रोज उसको यूज करना शुरू किया। तो कोई भी मतलब हमारा दिन स्टार्ट ही कम्युनिकेशन से होता था। फर्स्ट थिंग वी टॉक्ड अबाउट द डे टू डे, आज दिन क्या है, पहले तो कैलेंडर उसी में आवाज में किया, देन वी टॉक्ड अबाउट आज हम क्या क्या काम करने वाले हैं, आज हम कैसा फील कर रहे हैं, हमने कपड़े कैसे पहने हैं, आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, वो अच्छा था या नहीं था। उससे बच्चों को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन हमारा बढ़ता गया। मेन प्रॉब्लम आती है हमारे बच्चों के साथ, जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बिहेवियर्स बहुत ज्यादा आते हैं। वो बिहेवियर्स, माई सन हैड अ लॉट ऑफ बिहेवियर्स, मतलब सिर पर ही यूज्ड टू लाइक हिट हिज बैंग हिज हेड, बहुत जोर जोर से बैंग करता था। एंड द अदर वन, वो भी इससे एक कदम आगे ही हो गए, कम कोई नहीं था दोनों में। वो टेबल के नीचे जाकर लेट जाने का उनका था बिहेवियर। तो हमने आवाज इनको ऑफर करना शुरू किया, हमने इनसे पूछना शुरू किया कि क्यों, बताओ तो सही, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। तो हमें रियलाइज हुआ कि फीलिंग्स और अपने एक्सप्रेशंस के लिए जो कम्युनिकेशन है, आवाज इज द बेस्ट फॉर दैट। तब हमने इन्हें फीलिंग्स, इमोशंस, वो सब आवाज के थ्रू एक्सप्रेस करना शुरू किया। मॉडल करते थे हम अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस। धीरे धीरे हमने अपने बच्चों को इमोशंस, फीलिंग्स सिखाना शुरू किया। तो आज की डेट में, इट वाज इन 2015, जब मेरा बेटा बिल्कुल कुछ नहीं बोलता था, बिल्कुल पानी बिस्किट मीनिंगफुल नहीं थे, और आज की डेट है मतलब 5 years 2020, he is meaningfully communicating, he is communicating all the emotions and even he know कि किस इमोशन में मुझे क्या करना है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है उसको डील करने के लिए। तो लाइक डे बिफोर yesterday only my brother he visited me 7 years after 7 years, 7 साल के बाद मेरा भाई आया था, and he saw him after 7 years। तो जब पहले हमारे घर में कोई आता था तो सक्षम used to sit in a corner and he did not communicate at all। तो ऐसा होता था कि हम लोग बाहर बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, and he used to sit inside the room, मतलब वो उस कमरे में भी नहीं बैठता था। there was no communication at all, but it was a pleasure to see him communicated with his mamu, and he communicated कि मैं I am very excited, I am feeling very excited क्योंकि मामा है, मामा उसको he knows कि वो मामा है, मामी है, चाहे वो 7 साल बाद ही मिला, but he wanted to express। then he said वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ना, तो उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी अपनी एक्साइटमेंट। then he said I am excited and I have to calm down। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। देन सेट मैंने उससे थोड़ा जोन्स वगैरह कुछ कलर कोडिंग बताई है एक्सप्रेशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए। तो ही सेड एक्साइटेड, येलो एंड आई नीड टू काम डाउन, एंड ही काउंटेड 1 to 20 and he calmed down। तो वो चीज 5 साल पहले मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। वो आवाज ने मुझे दी है, जितनी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस जो मैंने उसे सिखाए, उसके साथ कम्युनिकेट किए, वो आवाज से किए। और हमें लगता है, मुझे भी लगता था जब मैंने आवाज शुरू किया था कि
वर्ड्स तो ये बोल रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वो बिस्किट पानी ऐसा बोल रहा था, मीनिंगफुल नहीं था बट वर्ड्स तो थे। तो मुझे लगा कि ये बोलना ही ना बंद कर दे, जो सारे पेरेंट्स को लगता है। कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसको ऐसा ना लगता हो कि तो थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, आवाज यूज करने से ये बोलना ही ना छोड़ दे। बट आई एम टेलिंग यू कि आफ्टर 5 years माई सन is communicating. He used to communicate with the help of आवाज, लेकिन अब it is spontaneous. We don't need the device, we don't need the app. He is spontaneously communicating, and it has happened only because of आवाज. And I'm very much sure about it because I did not do any speech therapy. I have never done. In 5-6 years मैंने कोई स्पीच थेरेपी उसके साथ नहीं की है. The only mode of communication is आवाज, जो कि उसके साथ मैंने किया है. तो ये 5 साल में बहुत डिफरेंस आया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है. और वो जो मेरे अंदर डाउट था, और मैं इसीलिए सारे पेरेंट्स को बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ कि नहीं रुकेगी भाई स्पीच, नहीं रुकेगी, नहीं बोलना छोड़ेगा. क्योंकि जितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं सबका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, मैम ये बोलना तो नहीं छोड़ देगा? हम क्या आईपैड सारी उम्र साथ लेके घूमते रहेंगे? अगर आईपैड सारी उम्र साथ लेके घूमना भी पड़ा तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है. अगर बच्चा डिपेंडेंट हो भी जाता है, जब हमारी आईसाइट वीक हो जाती है तो हम लगाते ही है ना स्पेक्स. लोग ईयर पे प्रॉब्लम आती है तो दे नीड मशीन्स. तो अगर मेरा बच्चा कम्युनिकेट विद नो कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन विद एन एड, तो उसमें बुराई कोई नहीं है. आईपैड, कैरिंग अ फोन और मोबाइल विद यू और छोटा सा कोई डिवाइस, इट इज वेरी कॉमन. आजकल तो सब बच्चों के हाथ में एक फोन होता है. तो अगर मेरे बच्चे के हाथ में एक फोन होगा जिसमें वो गेम नहीं खेल रहा है लेकिन वो अपनी मन की बात बता पा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे तो कोई उसमें ऐसा बुराई नहीं लगी. तो आई ऑल्सो कैरी आवाज वाला डिवाइस, आई ऑल्सो कैरी विद मी, क्योंकि कहीं कहीं तो अभी भी जरूरत पड़ती है उसकी. बट आई एम टेलिंग कि इससे एनहांस हुई है स्पीच, उससे कम नहीं हुई है स्पीच. तो ये एक रहता है, वो मेरे दिमाग में भी था. फिर जब सक्षम में इम्प्रूवमेंट आने लगी कम्युनिकेशन में, देन आई थॉट कि हमने एनसीआर में कोई भी ऐसा हमें नहीं मिला था जो आवाज यूज करता हो या जो हमें हेल्प करे आवाज की. और जब 3 साल में 2018 की बात है, तब तक हमें इतना आ गया था, मुझे इतना आ गया था कि अगर मैं किसी और को जो बिगिनिंग स्टेज पर है उसे भी हेल्प करूं तो वो भी आगे कम्युनिकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अपने बच्चे के साथ. देन दिस जर्नी विद सनराइज लर्निंग स्टार्टेड. तो अभी तक तो मेरा बच्चा और मेरी फ्रेंड का बेटा वो ही आवाज यूज कर रहे थे. फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड यूजिंग आवाज विद सनराइज लर्निंग स्टूडेंट्स. अमेजिंग चेंजेस वी हैव सीन. वी हैव सीन चिल्ड्रन कम्युनिकेटिंग. जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल स्कूल में जिनकी बिल्कुल आवाज ही नहीं आती है, उन्होंने कम्युनिकेट किया. वो कहाँ घूम कर आए, वो कौन से मॉल में गए, उन्होंने क्या खाया, हाउ डिड दे फील. और कुछ बच्चे जो उनके इंटरेस्ट की अगर बात करो तब तो आप कम्युनिकेशन को कहीं से कहीं ले जा सकते हो. तो कुछ बच्चों ने तो अपनी कम्युनिकेशन को मूवी से स्टार्ट किया और वहां से स्टार्ट करके दे टॉक्ड अबाउट देयर, उनके घर में क्या होता है, कौन सी उन्होंने लेटेस्ट मूवी किसके साथ देखी, क्या खाया, वहां तक वो पूरा कम्युनिकेशन लेकर गए. एंड देयर आर चिल्ड्रन, देयर आर स्टूडेंट्स इन जो कि टीनेज हैं, 15-16 ईयर्स के हैं, हु हैड नेवर कम्युनिकेटेड बिफोर, जिन्होंने कभी बिल्कुल, जिन्हें आप बोलेंगे कि टोटली साइलेंट, नॉन वर्बल, उन बच्चों ने भी ऐसी चीजें बताई जो हमने इमेजिन नहीं की थी कि इन्हें आती होंगी. Only what was missing, they knew all the things, what was missing was the communication. So आवाज ने एक ब्रिज बना दिया हमारे और हमारे बच्चों के बीच में, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना पा रहे हैं, एक दूसरे से
शेयर कर पा रहे हैं। और जब हम शेयर कर पाते हैं, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जब हमें पता चलता है कि हमारा जो हमारे साथ जो है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, वो हमें समझ पा रहे हैं, तो एक बहुत रिलैक्स फीलिंग होती है एंड उससे फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो लाइक आई वाज सेइंग कि 2015 में मेरा बेटा बहुत एग्रेसिव था, काफी एग्रेसिव था। वो हेड बैंगिंग करता था, वो जमीन पर लेटता था, बहुत सारे उसके बिहेवियर्स थे। थैंकफुली अभी इतने बिहेवियर्स नहीं है। आई कैन नॉट से कि जीरो बिहेवियर्स, नो नॉट जीरो, लेकिन आई कैन से ओनली 10% आर रिमेनिंग। वो भी तब होते हैं जब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, तब उसके मेल्टडाउन्स होते हैं, बट देयर आर नो मेल्टडाउन्स। मैंने बहुत टाइम्स, भगवान आज ही ना हो जाए, बहुत दिनों से मेल्टडाउन नहीं देखा है। क्योंकि क्या होता है कि मेल्टडाउन से पहले ही वो कम्युनिकेट कर देता है, वो बिहेव मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर वो कुछ फिजिकल नहीं है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं है, ऐसी कोई चीज जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, जिसको वो वर्ड्स नहीं दे पा रहा है, वहां पर अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जैसे पेन को, अपने स्टमक पेन, हेड एक, लेग पेन, इवन टूथेक, वो सब वो बता देता है। तो उससे क्या होता है कि वो मेल्टडाउन वाली फेज से हम बच जाते हैं। और बॉन्ड भी हमारा इसीलिए स्ट्रांग होता जा रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन के कारण मैं उसको अच्छे से समझ पा रही हूँ, वो मुझे अच्छे से समझ पा रहा है। अगर वो जो एक ब्रिज था, जो हमारे बीच में जो गैप था ना, वो गैप आवाज ने भर दिया। तो इस तरह से आवाज हमें बहुत आगे तक लेकर आया है और उम्मीद है कि हम बहुत और आगे जाएंगे। सो मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर वो आवाज साथ में लेकर, अपना आवाज वाला डिवाइस साथ में लेकर, अगर वो अपने जॉब पर या वर्क पर भी जाता है, ही इज एबल टू कम्युनिकेट, नथिंग इज मोर देन दैट फॉर मी। तो मेरा जो मेन अभी है कि नेक्स्ट स्टेज उसको वहां तक लेकर आना है। तो दिस इज अबाउट आवाज एंड माय स्टोरी। Thank you, ma'am. That was wonderful. Won't all of you agree that that is perfectly wonderful? Okay, so मैम आपने लगभग वो सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स जो हमारे पास थे वो क्लियर ही कर दिए। आप फिर से पूछ लीजिए। नहीं मैम, एक्चुअली Excuse me, ma'am. यस, Excuse me, ma'am. I want to ask one question. That this awaz is for only non-verbal kids or for all autistic? ma'am, she is asking, is it only, ma'am, you are mute, Vanna ma'am. Hi, yes. Avaz, like AAC, what AAC means? AAC means augmentative and alternate communication. Yes, So, ma'am. augmentative, what we mean by augmentative? Augmentative होता है कि हमारे पास कुछ थोड़ा है, हम उसको बढ़ा रहे हैं, we are increasing that. That is augmentative. And alternative is कि ये वाला नहीं ऑप्शन है तो हम दूसरा ऑप्शन यूज कर लेते हैं। तो नाम में ही इसका आंसर छुपा है। तो अगर स्पीच ऐसी है कि वर्ड्स तो हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, तो अगर हम उन वर्ड्स को लैंग्वेज में एनहांस करना चाह रहे हैं, ऑगमेंटेट करना चाह रहे हैं, तो यस, आवाज इज फॉर दोज किड्स, दोज एडल्ट्स ऑल्सो। आई विल नॉट टॉक ओनली अबाउट द किड्स। एडल्ट्स जो अभी तक जिन्होंने नहीं यूज किया है एंड दे आर इन द स्पेक्ट्रम, दे कैन आल्सो ट्राई। ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ ही हमें ट्राई करना है। और अल्टरनेटिव मतलब बच्चा बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल रहा है, नेचुरल स्पीच तो नहीं है बिल्कुल भी, और वी वांट कि वो बोले, अल्टरनेट कम्युनिकेट करे। हम नेचुरल स्पीच की जगह कोई और उसको रास्ता दे देते हैं कम्युनिकेट करने का, तो दैट इज अल्टरनेटिव। तो ये नॉन वर्बल बच्चों के लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है जो बोलते हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और एक चीज, कई बच्चे वैसे तो बोलते हैं, डेली में बोलेंगे, लेकिन
जब फीलिंग्स की बात आती है, जब एक्सप्रेशंस की बात आती है, then they will not talk. They cannot express their pain. They cannot express what emotion they are going through, what is going inside them. Then also it can be used. तो it is not कि ये पूरे नॉन वर्बल बच्चों के लिए ही है, but for all. Ma'am, I have. Yes, sir. I have purchased Awaaz. Okay. And what you explained is the advantages of Awaaz. My problem is how to start with it, how to go ahead with it at the first. To start with, That's yes. number one. I got it on my phone. Okay. Now, it will be easier for me to work on my desktop with the child sitting beside that. On phone, our reach is very little. You cannot work on that. So either on iPad or on desktop. And can we do that? Is it possible to put a... This is not available on desktop. So you won't be able to do it on laptop or computer. So either you use Android phone or a tablet or an iPad. You have to use it. Then how to go about it now? There is a yeah, there is a Awaaz app. They have their own blog, and on their blog they have written step by step how to go with that. So initially, I think you are grandfather to Roshni. Yes, you know. Yeah, I know you, sir. I respect you a lot. Oh my God. So I think for Roshni, we can we can go through the initial steps for 1 or 2 weeks, as mentioned in the Awaaz blog, and she can we can take her to the emotions and feelings things quickly. We won't need that much time, so we can talk about that. You can talk to me personally about that, how to go with that, because it will vary from child to child, it will vary from adult to adult, so we can personally talk about it. Okay. I will need your contact number. Yes, sir. Anytime for grandparents like you, I'm anytime available. Thank you. I would need your contact number. Sure, sir. Yes, Shruti. Yes. So we actually don't need any testimonies. Everyone is coming up with such wonderful experiences, and at every stage, हमको ये actually पता चल रहा है that everyone is already on the boat. We just now need छोटे-छोटे fine tuning की ज़रूरत है. Most of us are on board and agree with the fact that augmentative and alternative communication devices for इतने सारे purposes solve हो रहे हैं उनसे, right? मैम ने हम यूजुअली बातें करते हैं that हमको अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स के अराउंड उनकी ट्रेनिंग रिवॉल्व करनी चाहिए. वंदना मैम ने अपनी आईटी की स्ट्रेंथ को कन्वर्ट कर दिया into something so wonderful that she has become a pioneer in this field for all of us. So मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ that जब हम अर्ली इंटरवेंशन की बातें करते हैं तो कम्युनिकेशन स्पीच और इतनी सारी चीजों को हम रिवॉल्व करते हैं अराउंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ द चाइल्ड. अब आवाज के थ्रू वंदना मैम ने हमें बताया दैट सिंस इट इज गिविंग अस कम्युनिकेशन विच जिसकी लैक के साथ, स्पीच डिले के साथ मोस्ट ऑफ अस पेरेंट्स पहले पहुंचते हैं, सबसे पहले वही लेके पहुंचते हैं. सबसे पहले फॉर स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि स्पीच डिले इज समथिंग जो ऑटिज्म की डायग्नोसिस में वन ऑफ द अर्लीस्ट माइलस्टोन्स जो डिले हो रहे हैं, पेरेंट्स उसी के साथ पहुंचते हैं. कई बार जो दूसरे माइलस्टोन्स होते हैं लोगों को पता नहीं होता. सो मोस्ट ऑफ अस कम विद स्पीच डिलेज ओनली, राइट? So using this app, we are going to get from the beginning. If you see, सबसे पहली चीज हम कहते हैं connection and bonding. Autism की journey में neurodevelopmental delay की therapy में the first thing we always say is that we need to formulate a connection and bonding with our children, which is the first thing that Awaaz is giving us.
We just have to train ourselves properly. Communication भी दे रहा है, behavior modification भी दे रहा है, social interaction भी दे रहा है, learning भी दे रहा है. So ये वाले जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे 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 करके क्लियर करने जरूरी हैं. सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला मिथ है रिगार्डिंग आवाज, जो आई बिलीव बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, that does आवाज as an app hamper speech at any point of time? So categorically no. Categorically no. It will only aid. It will aid speech, it will aid communication. And एक बहुत बड़ी चीज जो hamper करती है learning and communication behaviors, it is going to aid in curtailing behaviors and again aiding learning. तो हर तरह से benefit मिल रहा है हमको, right? हम prompt based learning कराते हैं अपने बच्चों को. So rather than having, you know, cards and visual prompts, आवाज is a prompt in itself. वो इतना बड़ा prompt है, उससे ही हमारे इतने सारी लर्निंग आ जाती है. सो आई डोंट थिंक दैट एक मैम बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो लोगों के मन में होता है. आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. मैं इस लॉकडाउन में ना बहुत सारे वेबिनार्स हुए, बहुत सारे, और ऐसे लोगों के वेबिनार हुए, यू कैन नॉट थिंक अबाउट अटेंडिंग देम ऑन लाइव. So there was webinar from Temple Grandin, Dr. Temple. She does not need any introduction. She is a living legend in autism world. तो वहां पर भी AAC की बात हुई. She said कि we should use AAC. अगर आप उनकी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो she talks about AAC कि वहां पर you should give a AAC to a child, a non-verbal, a non-communicating child. It is better to have a communication with an aid rather than no communication at all. Then हमारे इंडिया में इतने बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं ऑटिज्म के. अकीला मैम है, इंदू मैम है, सबकी वर्कशॉप्स में देयर आर सो मेनी पीपल की नाम लेना भी, मतलब अगर मैं नाम लेने लगूंगी तो सेशन नाम में ही निकल जाएगा. One thing, very common one thing is that AAC enhances speech. It should be used. It has to be used. Even अभी last week एक speech therapist, एक SLP speech therapist की workshop हुई थी organized by Awaz, and there was a speech therapist from US. She had this thing कि किसी ने पूछा कि should we use it for a 2.5 year child, 2 years old. And she said कि they have words, but they don't know how to use the words. So if we provide an aid that can help them to use those words, तो उससे उनकी speech जल्दी आएगी, उनको वो enhance करेगा. And that we have seen in Raghav case. Right, Dr. Shruti? Yes, I agree completely. He was 2 years old when we... Yes, he was 2. Yes, he was 2.5 when we came to Sunrise, and Raghav was using a few, about 20 words or so, very basic words. And what I would like to say that he's 5 right now, and I just told Vanna ma'am today before beginning this session that today I heard 2 stories from him on Awaz. He spoke also. The only issue with him is that he's not able to remember and recollect and organize himself to be able to say a complete story. So from a situation, एक ऐसे टाइम से जब सिर्फ वर्ड्स थे उसके पास, 20 वर्ड्स होंगे हार्डली जो कि मीनिंगफुली, जैसा यहाँ एक पेरेंट ने पूछा कि वो क्या हम नॉन वर्बल और पार्शली वर्बल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. पर हमारा अल्टीमेट एम हमेशा ये होता है कि वो बच्चा कम्युनिकेट करे कंप्लीटली, वो बच्चा सोशली इंटरैक्ट करे हमारा, और सही समय पर, जैसा कि वंदना मैम सक्षम के साथ हो रहा है, अगर उसके कोई बिहेवियर्स आने वाले हैं या कोई सिचुएशन ऐसी है जो उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, तो वो अपने आप को रेगुलेट भी कर पाए. सो फॉर राघव ऑल्सो आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डू एवरीथिंग, almost everything. And the best part is that
now for certain periods, or he doesn't need it for a long period of time. I would say that now for Raghav, Awaz has become like a choice board, where जब उसके दिमाग में कभी वर्ड नहीं आए तो he has to go looking for the app की जो उसका फोल्डर है उसमें से उसको कोई वो वर्ड मिल जाए. He is not looking for the picture, mind you. एक टाइम था जब वो पिक्चर ढूंढ रहा होता था और बोलता नहीं था. But now he is not looking for the picture. He is just looking for a picture जिससे कि उसके दिमाग में वो वर्ड आ जाता है. And ये हर जगह होता है. This happens across time and place. ये कभी भी कर सकता है, वो बीच रात में और कहीं भी कर सकता है. मुझे अपने साथ कोई भी अब एड्स की जरूरत नहीं है सिवाय अपने आईपैड के, सिवाय अपने एंड्रॉइड फोन के. एंड स्टोरीज एंड कम्युनिकेशन नाउ अब हम प्रोग्रेस करके वी आर नाउ स्टार्टिंग टू टेक हिम एंड विद द ऐप ही इज नाउ एबल टू गो एंड टॉक टू पीयर्स ऑल्सो. अब हमने स्टार्ट किया है कि वो अपने पीयर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके. So now we are working on that. So slowly I would say that हम इतना दूर नहीं आ पाते अगर हमारे पास आवाज नहीं होता तो. For me it is just like that. So truly speaking, proper use से और सही time पे use से आवाज has taken us, you know, a very 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 long way, very long way. Speech बहुत छोटा सा aspect रह गया आवाज का, बहुत ही छोटा सा. Speech आना तो is like you know a bonus for us right now. The number of things that we are getting with Awaz is like mind-boggling, and I'm very very hopeful that possibly in a couple of years everyone will be using it very 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 fruitfully. Ma'am, एक question जो है for those who are not so technologically savvy, जिनको थोड़ा बहुत सारी mothers हैं जो उतना नहीं कर पाती हैं. So do you think it is complicated या आप गूगल मीट ज्वाइन किए हो ना, वो मदर्स यहाँ पर हैं. A number of mothers here, yes. And they, अगर वो यहाँ नहीं है तो वो फेसबुक पर देखेंगे. Yes, कहीं ना कहीं तो देखेंगे. तो they will use technology, right? So they are learning how to connect to Google Meet. WhatsApp तो सभी लोग चैट करते हैं, गॉसिप्स करते हैं WhatsApp पर बहुत सारी. WhatsApp को यूज करना हमने सीख लिया. हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं अपने भाई बहनों को, अपने पेरेंट्स को. ऑलमोस्ट एवरीबडी डज, राइट? व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं, फेसबुक सब लोग यूज करते हैं. ऐसे ही ये भी एक छोटी सी चीज है जो हम जल्दी सीख सकते हैं. ऐसा इसमें टेक्निकल से भी होना जरूरी नहीं है. इनिशियली आप किसी की हेल्प ले सकते हो फॉर कैसे उसमें मैसेज क्रिएट करते हैं, कैसे कैटेगरी, कैसे पिक्चर डालते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं. वो एक दिन का काम है, मैक्सिमम 2 days, 1 या 2 days. जैसे हमने व्हाट्सएप में सीखा मैसेज कैसे करते हैं, फोटो कैसे अटैच करते हैं, वॉइस मैसेज कैसे भेजूं, इसको हिंदी में कैसे टाइप करूं, वैसे ही हम ये भी सीख लेंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है. ऐसा कुछ भी नहीं है. बस आप में विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है और मेरा बच्चा ये कर पाएगा और मैं भी ये कर पाऊंगी. द ओनली प्री रिक्वेस्ट जो स्किल है इसके लिए, दैट इज कॉन्फिडेंस इन यू एंड योर चाइल्ड. That is the only thing you need. And consistency. Yes, consistency I believe is extremely important. आपने आवाज बाय तो कर लिया, तो आपने एक दिन अपने बच्चे के साथ यूज किया, एक दिन क्योंकि हम बहुत जोश में हैं हमने उसको बस हर चीज में आवाज दिखाना शुरू किया. वो भी गलत है. उसका भी एक तरीका होता है विच वी टॉक इन डिटेल्स इन जो हम सेशंस करते हैं या फिर जब हम सिखाते हैं पेरेंट्स को कि कैसे यूज करना है. और वो आवाज के ब्लॉग में भी बहुत अच्छे से मेंशन है, उनका जो ऐप का ब्लॉग है उसमें भी बहुत अच्छे से मेंशन है. 1-2 दिन बहुत जोश में हर चीज के लिए दिया, महीना भर गायब हो गए. उसके बाद फिर याद आ गया 1 महीने के बाद, ओ हमने तो आवाज खरीदा था, यूज क्यों नहीं कर रहे हैं हम. फिर 1-2 दिन किया, फिर भूल गए. तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तब तो कोई आवाज भी कुछ नहीं कर सकता. वो खरीदा हुआ आपका वेस्ट हो जाएगा
और फिर आपको लगेगा कि ये तो बेकार है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज, आवाज ही नहीं, कोई भी एसी, इवन अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो, अगर आप कोई और ऐप यूज कर रहे हो, कोई भी चीज, कोई भी कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे हो, अगर आप नेचुरल स्पीच पर भी काम कर रहे हो, वहां पर भी अगर हम एक दिन ट्राई करेंगे, दूसरे दिन उसको भूल जाएंगे, फिर 1 महीने बाद हमें याद आया कि जब तक ये मांगेगा नहीं तब तक तो हमें देना ही नहीं था इसे, और रोज हम दे रहे थे पानी, तो वो तो फिर कंसिस्टेंसी तो ब्रेक हो गई ना। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और हर बच्चा डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। कोई बच्चा 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 2 दिन में भी सीख सकता है, कोई 1 वीक में सीखेगा, किसी को महीनों भी लग सकते हैं। पेशेंस, दीज 2 थिंग्स, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 बहुत चीजें जरूरी हैं। और जो टेक्निकल स्किल्स की बात है, उसमें हमें अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखना है। हाँ, हम कर सकते हैं और ये भी हम करेंगे। बच्चे भी, मेरा बच्चा समझता है सब और ये सब करेगा, ये विश्वास रखना है। ये 2 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। Ma'am, we have a question from Adiraj's mother. उनके हिसाब से her child is not able to hold the phone properly right now. He's only 2. स्टैंड आते हैं, मैंने अभी देखो मेरे हैंड्स फ्री हैं, स्टैंड पर है, एंड आई एम नॉट यूजिंग लैपटॉप। एंड 2 साल के बच्चे मैम YouTube बहुत आराम से चला लेते हैं, आई बिलीव। और 2 साल नहीं, मुझे लगता है उसको 1 या 2 महीना लगेगा हार्डली। एंड उसको एक्चुअली चलाना नहीं है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट की बात है। जब उसको लगेगा कि अगर आपने हाथ में भी, अपने ही हाथ में पकड़ा है, बच्चे के हाथ में नहीं भी दिया है, लेकिन उसको लगा कि मैंने इससे कुछ कम्युनिकेट किया और मेरी मम्मी समझ गई और मुझे वो चीज मिल गई, या फिर वो उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, मेरी मम्मी ने मेरे हिसाब से अपने आप को चेंज किया मेरे बताने पर, तो वहां से वो उसको ट्रिगर होगा कि हाँ, यहां से ये समझ जाते हैं। तो इंटरेस्ट, जैसे जब जिस चीज में इंटरेस्ट आएगा उसकी मोटिवेशन अंदर से आती है। तो इंटरेस्ट डेवलप करना, बहुत इंटरेस्ट आएगा तब जब हम उसे स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे आवाज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, उनको समझ आना चाहिए कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन हमारे बच्चों की सक्सेस के फाउंडेशन स्टोन्स हैं. So reinforcement and building interest in Awaaz. There is a parent who has just asked how to develop interest of child in using Awaaz. We have just started using this app. So, ma'am, would you like to say something on that? How to develop the interest in Awaaz? We have other mothers also with us. We can ask them how did they develop interest. Yes, Dr. Monica, Nidhi, you are there? Would you like to add something here? Tanisha's mother, is she there? Juhi? Okay, they will come. They will come. They will talk. इनिशियली जब हम यूज करते हैं ना, जब भी कोई चीज हम बच्चे के साथ नहीं शुरू करते हैं. Yes, okay, now yes. I learned to unmute myself. I was trying to unmute myself. So yes, I can answer this. Yes. The biggest factor in this is the child gets what he wants. Yes. So you can begin with a very small thing of giving, like we started with a very small thing of giving choices of YouTube. What would you like to watch on YouTube? So we had 4 favorite Peppa Pig, we had the nursery rhymes, so that was the best thing because they know what to point at. So you point and you get the auditory and visual stimulation, so that is very motivating, and hence they understand, okay, this is a way through which we can get something. Then we moved on to we have a reinforcers folder, which has all the wrong things, the chips, the ice cream, and so that's how I had a problem teaching navigation actually. We had a lot of motor issues, so that is why we took the highest reinforcers.
सो जैसे डॉक्टर श्रुति सेड यूट्यूब तो निकाल ही लेते हैं, तो वो वही हुआ उसमें. तो I hope that answers. Yes, Yes. yes, absolutely. Anyone else who wants to, speak about their experience? Anybody here? Anyone else who wants to tell us? Yes. Dr. Mom and Dr. Monica are there. Anybody else is there who's using Avaz? Okay, I'll go. I'll share my experience. Like Nidhi said कि YouTube तो ढूंढ ही लेते हैं ना. हमारे केस में था मेरा बच्चा बहुत फूडी है. तो फूडी जो बच्चे फूडी है ना उनके लिए तो मतलब जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, whenever we start something new, वहां पर हमें इंटरेस्ट डेवलप होगा जब हम उनके इंटरेस्ट का कुछ करेंगे. दैट व्हाट वी हैव टू डू. तो पहले हमें उनके हिसाब से चलना होगा, फिर धीरे धीरे हम उन्हें अपने उसमें लाएंगे. तो पहले जो स्टार्टिंग जो बिल्कुल स्टार्ट होता है वो कुछ ऐसी चीज से होता है जो कि वो दिन में 10 बार मांगेगा और जिसके बिना वो रह नहीं सकते. समथिंग लाइक दैट. तो क्योंकि हमें इस टाइम पे उन्हें कॉज एंड इफेक्ट सिखाना है. बट अदरवाइज मोटिवेशन कैसे आएगा जब तक कुछ ऐसा रीइंफोर्सर नहीं मिलेगा जो कि बहुत मोटिवेट करे उन्हें कि हाँ नेक्स्ट टाइम फिर से मिल जाएगा अगर इससे करूं. तो कॉज एंड इफेक्ट सबसे पहला स्टेप होता है एएसी इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो कॉज एंड इफेक्ट सिखाने के लिए हमें उनका एक या दो मतलब जो भी उनके हाईली रीइंफोर्सर चीजें हैं वो यूज करनी होती हैं. तो ऐसे हम स्टार्ट करते हैं. देन ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे हम उनके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट ऐड करते रहते हैं. थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, और धीरे धीरे करके वो कम्युनिकेशन जो है वो डे टू डे कन्वर्सेशन टाइप में हम ले आते हैं. Ma'am, reinforcement, I believe, is something that has to be remembered at all points of time, whether or not the child is using Avaz, whether or not child is doing, for everything. Yes. And so similarly for, I believe, AAC also, जैसे जो parents जब हमने initially PECS भी किया था, when we were doing picture exchange communication system के भी level 1 में या किसी भी level में reinforcement has to be there. Reinforcement is in itself, not only creates interest, but also gives motivation to use the app again and again. Ma'am, I think we should go on to discuss a little bit about mera personal concern for some point of time was that Raghav was able to maneuver. He used to go to YouTube and he used to go to all places. So I had that one app, that one device where he had the Avaz app also, he had the. So after a while, it had become a big behavioral issue for me. So do you think there is some way that we can restrict? Yes, ma'am. Yes. अगर तो आप iPad पर कर रहे हैं, तो there is guided access where you can block all other apps and it will only do with Avaz. अगर आप Android पर हैं, तो Android पर आप क्या कर सकते हैं कि फोन्स तो आजकल घर में ऑलमोस्ट होते ही हैं, सबके पास दो, हर एक के पास एक से ज्यादा ही होते हैं. तो एक डिवाइस आप अलग से रख सकते हो जिसमें केवल आवाज होगा और उसका जो उसके ऊपर ना आप कवर, जो हम फोन्स के ऊपर कवर रखते हैं ना, उसका कवर बाकी फोन के कवर से अलग होगा. उसमें केवल आवाज होगा और कुछ भी इंस्टॉल नहीं करेंगे और उसका कवर जो है वो दूसरे फोन से अलग होगा. और उसको हम पैड या फोन या ऐसा नहीं बोलेंगे या टैबलेट नहीं बोलेंगे, उसे हम आवाज डिवाइस या ये आवाज बोलेंगे. जैसे हमने जो स्कूल में है, जो हमारे स्कूल में सनराइज लर्निंग में यूज होता है, दैट इज अ ब्लू कलर उसका कवर है. एंड वी डोंट कॉल इट दैट आईपैड. इवन व्हेन वी टॉक टू ईच अदर, व्हेन आई आस्क डॉक्टर सोनाली की मुझे चाहिए दे दो, तो मैं बोलती आवाज दे दो. आई डोंट से कि आईपैड दे दो. या रुचि मैम से जब मांगना होता है तो हम बोलते हैं आवाज दे दो मैम. और बच्चों को भी जब हम देते हैं ना, तो हम कभी भी नहीं बोलते कि आईपैड है ये, सेट की आवाज. तो हमने वो एक नाम दे रखा है. जरूरी नहीं है आप आवाज, अगर आप कोई और एसी यूज कर रहे हो आप वो वाला नाम दे दो.
जो आपके बच्चे को कुछ और नाम देना चाहो जो उसको अच्छा लगता, लेकिन वो एक अलग नाम से अगर रखेंगे उस डिवाइस को, तो उससे जो ये वाली प्रॉब्लम होती है कि हम यूट्यूब में जा रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, वो सॉल्व हो जाती है। आईपैड में आप गाइडेड एक्सेस कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि जिस डिवाइस में, अगर हम एक ही डिवाइस में ही कर रहे हैं, उसमें हम मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस रखें। So, ma'am, Avaz app can be used across Android as well as Apple devices, right? Yes, yes. It can be used. It cannot be used on desktop, laptops or computers. Windows system पर नहीं चलती है ये. It can be used on iPhone, iPad, Android phones, Android tablets. It can be used. Ma'am, how do we track progress? Like in Avaz, especially for milestones की जहाँ तक हम बात करें, so we'll mostly be talking about milestones in terms of language and social interaction. Milestones इसमें वैसे ही रहते हैं जैसे स्पीच के milestones होते हैं। तो जैसे जैसे स्पीच का एक पैरामिड होता है ना, we start with WH. पहले तो हम नाउन्स, पहले तो हम केवल ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, then we do verbs and then, तो उस तरह से ही बाकी बच्चे टू बच्चे, इट विल वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। अगर मेरा बच्चा, अगर उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज, आपको रिसेप्टिव लैंग्वेज से आइडिया हो जाएगा कि मेरा बच्चा कितनी बात समझ पा रहा है, और वो पॉइंटिंग वगैरह कुछ करने से उनको आइडिया हो जाएगा। आपको पता होता है अपने बच्चे का कि उसके पास कितने वर्ड्स वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है। वहां से हम एक लेवल आगे वाला माइलस्टोन लेंगे। तो अगर मेरा बच्चा 1 वर्ड पर है ना, मान लीजिए 1 वर्ड में कम्युनिकेट कर रहा है, तो माई माइलस्टोन विल बी कम्युनिकेशन इन 2 वर्ड्स, phrases. If my child is communicating in phrases, then my milestone will be 1 step next, that is sentences. And if he's on sentences, then he should do a conversation in 4 to 5, 2 to 3 sentences, then 4 to 5 sentences, then a proper conversation should happen. वैसे ही माइलस्टोन जैसे हम स्पीच में लेकर चलते हैं, ऐसे उस तरीके से चलेंगे। Ma'am, can we give leisure skills and also through Avaz? लेजर स्किल्स में हम उन्हें चॉइसेस दे सकते हैं। सो चॉइसेस मतलब कि मान लीजिए कि बच्चा बोर हो रहा है, तो वो अपने आप, बेसिक एम है हमारा कम्युनिकेशन, मतलब कि जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से तो गाइडेड कम्युनिकेशन हो गया ना। कम्युनिकेशन मीन्स कि बच्चा अपने आप से अपनी चीज बताए। तो पहले तो हमें मॉडल करना पड़ेगा। मॉडल मीन्स डेमोन्स्ट्रेट। तो पहले हमें मॉडलिंग करनी पड़ेगी। मॉडलिंग इज द कोर ऑफ एनी स्पीच से जो भी हम, कोई भी हम बच्चे को जब चीज सिखाते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दैट इज मेन, जो मतलब क्या बोलते हैं उसे कि मॉडलिंग के बिना तो पॉसिबल नहीं है। जब तक हम खुद करके नहीं दिखाएंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। हम ब्रशिंग भी सिखाते हैं, हम टॉयलेट यूज करना, वॉशरूम यूज करना सिखाते हैं, तो हम मॉडल करते हैं, हर चीज करके दिखाते हैं ना, तब बच्चा सीखता है। पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं तो पेंसिल पकड़ के दिखाते हैं, ऐसे पकड़ो, ऐसे करो। वैसे ही जब एसी आप यूज करते हैं तो आपको मॉडलिंग करनी है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना है, जहां पर आपका कम्युनिकेशन, मेरा कम्युनिकेशन भी एसी के थ्रू होगा। ठीक है, चलो तो एग्जैक्ट। तो अगर मैं अपने आप मॉडलिंग करूंगी तो मेरा बच्चा भी वो आगे फिर उसको मॉडल करेगा। आपका क्वेश्चन मैं भूल गई, क्या क्वेश्चन था? एक्चुअली मैम क्वेश्चन ये था इनिशियली यही कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, लैंग्वेज के जो वेरियस माइलस्टोन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में और लेजर स्किल्स के डेवलपमेंट में, स्पेशली लेजर स्किल्स में। हाँ, मेरा बच्चा खाली बैठा हुआ है, मैंने मॉडलिंग किया, बहुत दिनों तक मैं मॉडलिंग करूंगी। अच्छा, तुम खाली बैठे हो, बोर हो रहे हो, तो मैंने मॉडल कर दिया बोर, या एक तो मैंने उसको वो फीलिंग बता दी, बोरिंग वाली जो फीलिंग, एंड देन आई गेव आवाज, इसमें से कोई चीज हम कर सकते हैं, एंड आई कैन ऑफर इट टू माई चाइल्ड एंड ही कैन सिलेक्ट वन थिंग एंड वी विल कीप मॉडलिंग फॉर सम टाइम। खाली बैठा है बच्चा, जानबूझकर उसे खाली टाइम दे दिया, जानबूझकर कम्युनिकेशन शुरू किया एंड उसमें चॉइस देना शुरू किया।
थोड़े दिन तक तो हम ऐसे ही करेंगे, मॉडल कर रहे हैं, हम उसको ऑफर नहीं करें। फिर धीरे हमने पीछे हटना शुरू किया। अब हमने प्रॉम्प्ट हटा दिया अपना, हम नहीं बोलेंगे, हमने बस बिना बोले आईपैड दे दिया एंड बच्चा बताए कि मुझे क्या करना है उन 4-5 चीजों में से। फिर जैसे जैसे वो होता जाएगा, देन द चाइल्ड विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो फिर एक दिन आएगा कि वो अपना आईपैड उठा के या अपना फोन लेकर आपके पास आके वो एक्टिविटी आपसे मांगेगा, लेजर स्किल। लेकिन आईपैड एज अ लेजर स्किल, मतलब आवाज एज अ लेजर स्किल, आवाज को हमें लेजर स्किल नहीं बनाना है, तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। आवाज केवल कम्युनिकेशन के लिए है, खाली टाइम में आप ऐसे ही उसके साथ, हाँ कभी कभी जब हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं शुरुआत में, या फिर जब हम उस पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस टाइम पे हम थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, तो उस टाइम पर भी पेरेंट्स या जो कम्युनिकेशन पार्टनर्स हैं, जो टीचर्स हैं या घर में जो भी लोग हैं, उन्हें ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर बाय चांस मेरा बच्चा खेलते खेलते डॉग कैट ऐसा कर रहा है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग। एग्जैक्टली, ताकि उसे ये फीलिंग ना आए कि मैं इसके साथ खेल मतलब लेजर नहीं बनाना है, आवाज को लेजर नहीं बनाना है, बट आवाज कैन बी यूज टू कम्युनिकेट हिज और हर लेजर स्किल्स, लेजर नीड्स, कि मुझे ना बोर हो रहा है, मैं ये गेम खेलना चाहता हूँ, वो वाला कम्युनिकेशन। बट आवाज को लेजर स्किल नहीं बनाना है, आवाज को लेजर नहीं बनाना है। So, reminding everyone again that this app or any AAC device gives us what? It not only gives us communication, it assists in the development of speech, it augments communication, it develops connection, bonding, behaviors control कर सकते हैं, social interaction में भी help करता है, learning, and it can also be a tool, a communicative device that can help the child in communicating which of the leisure skills he wants to right now indulge in. So in all forms of communication, जहां पर भी communication required है, and AAC, whether आवाज or any other, can help. Ma'am, can you give us a little bit indication about the cost associated with it? It is around, for lifetime, it is around 9,000. 8,990 something. But when in October and in April, they give discounts. Most of the AACs give discount, so you get in half price, and you can also go for the monthly subscription, that is around 490. I don't exactly remember the amount, but it is like 299. So you can decide कि 2 महीना यूज करके देख लिया, अगर लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं और मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो देन यू कैन गो दैट। तो इतना तो कर सकते हैं आई थिंक ना। एक और चीज मेरे से पूछी जाती है, अभी हम इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, प्राइस वगैरह के बारे में। तो एक और चीज पूछते हैं कि आपने आवाज यूज कर रहे हो, बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, जो कि फ्री हैं, फ्री भी हैं या उनकी कॉस्ट कम है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब हम एक कम्युनिकेशन ऐप को चूज करते हैं अपने बच्चे के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो एक तो है कि कस्टमाइजेबल बहुत अच्छे से कर पाना चाहिए। हमें एक इनबिल्ट वोकैबुलरी दे दी जाए, उसमें तो हम लिमिटेड रह जाएंगे, हमारा बच्चा उसमें आगे कैसे उसको लेकर जाएंगे। मुझे अपने बच्चे के हिसाब से वो चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए उसको, वो बहुत अच्छे से आवाज हमें देता है। दूसरा ये था कि इसकी वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, बहुत सारे वर्ड्स इसमें इनबिल्ट है, बहुत सारे नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव जो हम डे टू डे यूज करते हैं। कुछ जो एप्स हैं जो अच्छी हैं, बट वो फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में अच्छी हैं, दे आर गुड फॉर वेस्टर्न कंट्रीज, बट व्हेन इट कम्स टू आवर इंडियन कल्चर, तो वहां पर उनका खाना, उनके कपड़े, उनका
ग्रीटिंग्स करने का तरीका, वो सब हमें इस वोकैबलरी, उनकी वोकैबलरी में नहीं मिलता है, जो हमें आवाज इजीली दे देता है। आवाज में 6 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। तो अगर कोई अपनी तमिल तेलुगु में इसको यूज करना चाहता है तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। मराठी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, बहुत सारे 6 और लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम इसे यूज कर सकते हैं। वो कोई और ऐप हमें ऑप्शन नहीं देती है। तो और एक ये है कि इनका जो सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट है, वो काफी अच्छा है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। व्हेन आई गिव प्रेजेंटेशन, जब हम सेशन करते हैं तो देन आई टॉक अबाउट कि क्यों हम, तो आई गो थ्रू अ फ्लो चार्ट। अभी तो इतना टाइम नहीं है कि फ्लो चार्ट में ही घंटा लग जाएगा। We'll listen to Ahan mom's testimony now. I think she's here. She's here, isn't she? Monica, would you like to say something how Awaz is helping you and Ahan? Hello friends. Yes, I would like to say I strongly advocate AAC or any kind of alternative communication. मैं अपने बेटे के हिसाब से बताती हूँ। when he was just 2 years old तो हम AFA गए थे उसको लेके। That time they started the AFA people, they started with sign language for him. Not sign language, it was basically Mands signs for him, few signs for music and bubble, something like that. और उससे मैंने अपने बच्चे में पहली बार उसका कम्युनिकेशन मैंने देखा कि वो जो उसने साइन किया, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग, अपने आप भी उसके साइन बढ़ने लगे। मैंने देखा कि उसमें कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, जो कि ना उस समय 10 साल पहले तो वैसे भी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमें भी ऐसे लगा, और स्पीच थेरेपिस्ट ने ऐसे बोला कि नहीं करो ये सब, स्पीच नहीं आएगी, वो तो बोल सकता है, दिस दैट, एंड वी स्टॉप्ड द साइंस। एंड कॉग्निशन बच्चे का इतना अच्छा था, एक्सप्रेसिव में ही प्रॉब्लम थी कि वो फिर भी पैक्स के थ्रू कैसे भी जेस्चरिंग, पॉइंटिंग, अनक्लियर वर्ड से कम्युनिकेट करता रहा। फिर जब मैंने आवाज का एक वर्कशॉप अटेंड किया सनराइज में, दैट टाइम आई थिंक नारायणन ने किया था वो, आई थिंक इट वाज या वे बैक। उस समय मैंने परचेज भी कर लिया, बट देन या वी स्टार्टेड विद अ बैंग। बड़े अच्छे से स्टार्ट किया, पढ़ाने भी लग गए उससे, बच्चा भी बड़ा खुश। एंड देन वही जैसे वंदना मैम ने बोला, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। बट आफ्टर अटेंडिंग वंदनाज वर्कशॉप, उसके बाद तो वी एक्चुअली वेंट क्वाइट अहेड। रिक्वेस्टिंग तो वैसे भी करता था, उसके वर्ड्स क्लियर नहीं थे, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला क्योंकि उसकी क्लैरिटी भी इम्प्रूव हुई। ऑडिटरी इनपुट जो मिलता रहता है उससे उसकी क्लैरिटी इम्प्रूव हुई। प्लस सिर्फ रिक्वेस्टिंग के अलावा फीलिंग्स, जो कि एज यू सेड है ना, फीलिंग्स जब बच्चा बता पाता है तो बहुत बहुत बेनिफिट होता है। बिकॉज एज अ मदर अगर आप ये जान पाओ कि बच्चा फील कैसे कर रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है ना। तो वो जब वो बता रहा है कि व्हेन आई एम स्कोल्डिंग हिम एंड इज आस्किंग फॉर अ हग, आई थिंक आई शेयर्ड दैट, और व्हेन ही इज सेइंग सॉरी, दीज थिंग्स जो मैंने बिल्कुल सोची नहीं थी कि आवाज से ये भी कर पाएगा वो। तो हम इतना आगे पहुंच गए हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, फीलिंग्स बता रहे हैं। और ऑब्वियसली ये सब चीजें, प्लेसेस कहाँ जाना है, बाहर जाना है तो साइकिल राइड नहीं जाना है, टुडे आई वांट टू गो फॉर ऑटो राइड, दीज ऑल थिंग्स हम सोच नहीं सकते थे कि अगर बच्चा इतना मिनिमली वर्बल है तो कहाँ से रिकॉल करेगा वर्ड्स, और कब तो बताएगा और कब हम समझेंगे। तो वो सब चीजों में इतना मतलब आगे चले गए हैं हम, और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आया है मेरे बेटे में कि दैट वो जो बॉन्ड है ना, वो ट्रस्ट फॉर्म मतलब रहता है एक, कि मम्मा मेरी बात समझ रही है। और अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि कुछ दिन पहले जब ऑटो राइड उसने अपने आप मांगा, कीबोर्ड से ही मांगा, क्योंकि ऑटो मैंने नहीं डाल रखा था उसमें। गो टू फोल्डर पे जाके, हम गो टू में आजकल तो ज्यादा जगह जा ही नहीं पाते हैं, तो मैंने सब हटा दिया, मैकडी वेकडी कुछ भी नहीं था उसमें। बट ही वॉज ओनली गोइंग टू, उसमें लिखा था गो टू साइकिल एंड गो टू दिस आई थिंक वॉक आउटसाइड, वॉक और एक टेरेस, ऐसा कुछ था, 3 ही 4 चीजें। बट ही वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग एंड आई न्यू व्हाट वाज इट, सो आई ऑफर्ड हिम कीबोर्ड and I helped him type the, I knew what he was, what was on his mind, तो मैंने उसको टाइप करने के लिए दिया। और
खाली A टाइप कराया एंड आई न्यू दैट ही प्रेस्ड AUTO एंड ही वाज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी कि हाँ मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, वो पिक्चर नहीं थी उसमें। सो दैट मीन्स आई वुड से बहुत बहुत बेनिफिट हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्पीच डाउन जाएगी या ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पीच में भी बेनिफिट होगा और कम्युनिकेशन के मतलब इतना कम्युनिकेशन का भी क्या एक्सपेंशन जिसे कहते हैं अलग अलग एरियाज में इम्प्रूव हुआ है, प्लस बिहेवियर्स तो डाउन गए ही हैं डेफिनेटली। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरा बच्चा बार बार एक्सप्लोर करता था उसको, तो मैं हमेशा वंदना से पूछती थी कि यार वो स्टिम बहुत करता है, वो स्टिम करता रहेगा तो समझेगा क्या, बट देन हर आंसर वाज लाइक इट वाज वेरी नाइस दैट हम भी तो यू नो छोटे बच्चे भी तो बैबल करते हैं ना, तो कुछ कुछ साउंड्स बैबल करके फिर एक्सप्लोर करते हैं, वो वर्ड्स एक्सप्लोर करने दो, एज लॉन्ग एज वो मीनिंगफुली कर रहा है तो कभी कभार उसको करने दो, हर समय मतलब ये नहीं कि कभी कभार अगर वो वर्ड्स देख रहा है कि किस फोल्डर में क्या है तो उसमें कोई हार्म नहीं है। एंड फिर मैंने वहां से दिमाग हटाया कि कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं उससे ले लेती थी हमेशा डिवाइस, वहां से दिमाग हटाया कि नहीं नहीं कुछ कोई बात नहीं, आई थिंक इट विल हेल्प हिम, ये करने दो इसको। देन आई अंडरस्टूड दैट हाँ वो कभी कभी न्यू वर्ड्स निकाल के कहाँ से ले आता है, बिकॉज उसने नेविगेशन करना सीखा थोड़ा बहुत। आई होप जल्दी कीबोर्डिंग पे आ जाए तो फिर बहुत ही अच्छा होगा, बट अदरवाइज अभी तक की जर्नी बहुत बहुत अच्छी रही, स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन। इतना डिफिकल्ट टाइम था और इतना बिहेवियर ऐसा लग रहा था कि कैसे ही कटेगा, बट इट हेल्प्ड अस अ लॉट। थैंक यू सो मच। That is so wonderful. That is so excellent. You've given such wonderful insights, and it is so lovely to hear from you about Thank you. your son. And you know, अभी तक हमने ऑडिटरी इनपुट की बात एक बार आपने बोल दी तो मुझे याद आ गया कि इस बारे में तो हमने कुछ बोला ही नहीं अभी तक। इट इज सो इम्पोर्टेंट, यू नो, दैट इनपुट। एक्चुअली मेरे बेटे के साथ भी क्लैरिटी का अभी तक इशू है, एंड इट कीप्स ऑन हेल्पिंग हिम एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। Yeah, actually it helps. Yeah. So, is there anything that you feel, Vandana ma'am also and Monica, both of you, that there are any kind of side effects to use of Avaz? Have you ever experienced any side effects in your journey, Vandana ma'am? नहीं, Not at नहीं all? ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ Nidhi, for wheel, do you see any side effects? निधि का थोड़ी देर बाद अनम्यूट हो। चलो ठीक है, we'll wait to hear from her. I have not seen any side effects. So we are clear on that. No side effects, only benefits if used properly, and we should allow our child to explore as much as possible. Ma'am, how much for a beginner? How much time do you think does it take to, you know, set up the device according to their specifications for a beginner? It does not take that much time. For a beginner, we only use two three things initially. So hardly a day, half day or a day, not that much. मदर के लिए, पेरेंट के लिए पूछ रहे हो ना? Exactly. बच्चे डॉक्टर श्रुति, आई वांट टू ऐड कि हम इसीलिए आवाज की ट्रेनिंग्स देते हैं समझने के लिए। आवाज फॉर बिगिनर्स भी हमने इसीलिए किया था कि जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करना है उनके लिए, और जो एक लेवल हो चुका है जिनका छोटे छोटे वर्ड्स हो चुके हैं, अब क्या नेक्स्ट क्या वर्ड सिखाना है, तो उसके लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज आ गई है बस बट उसका डेवलपमेंट करना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरह से अभी भी हमारी ऑनगोइंग चल रही है वर्कशॉप। I would like to add here. क्या होता था कि पहले हम ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैंने नारायणन है आवाज के सीनियर पर्सन है, he had a workshop in August 2018। तो उस टाइम पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि आता तो है मुझे, मैंने तो काफी कर लिया था 3 साल में सक्षम के साथ, लेकिन एनसीआर में हमें कोई मिला नहीं जो हमारी हेल्प करे उसे आगे बढ़ाने में। तो मुझे लगा कि मैंने इतना सीख लिया है ना, तो हम ही स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा जिससे जो बिल्कुल जो सोच रहे हैं कि मैंने ले तो लिया लेकिन मैं इसको आगे कैसे बढ़ूं, उनको थोड़ी हेल्प हो जाए एज अ पेरेंट। जो मुझे इनिशियली मैंने आपको बताया ना कि 5-4 महीने तो हम उसे बस इधर उधर ट्रायल ही करते रहे, अगर वहीं पर ही हमें वहां पर वो गाइडेंस मिल जाती स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करना है, तो
हम बहुत और भी आगे निकल जाते। तो उस टाइम हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग सनराइज लर्निंग के साथ में एसोसिएट हो गई थी आफ्टर दिस वर्कशॉप, आवाज की वर्कशॉप के बाद। देन वी डिसाइडेड कि हम AAC की अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और जितना हम कर सकते हैं हेल्प जो हमें आता है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, आई एम अ यूजर, एक्चुअली आई एम एन यूजर ऑफ आवाज। तो हम इसे आगे लेकर जाएंगे। तो पहले तो हम केवल अपने सनराइज के पेरेंट्स के साथ ही करते थे ट्रेनिंग्स, इंटरनल ट्रेनिंग्स। फिर हमें लगा कि व्हाई नॉट, जो सनराइज में नहीं है उनको भी तो जरूरत होगी ना, उन्हें भी तो हेल्प की जरूरत होगी। तो हमने एक वर्कशॉप किया पहले, लेकिन जब वो हम वर्कशॉप करते थे तो उस वर्कशॉप में भी केवल हम बिगिनिंग की ही बात करते थे, हाउ टू स्टार्ट। अब कई लोग स्टार्ट तो कर पाते हैं, स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या करें। हमें रिक्वायर, जो कम्युनिकेशन अल्टीमेट गोल ऑफ AAC इज कि मेरा बच्चा उसके थ्रू कम्युनिकेट करे। इट शुड नॉट बी अ गाइडेड कम्युनिकेशन। आई एम रिपीटिंग इट मेनी टाइम्स कि इट शुड नॉट बी गाइडेड कम्युनिकेशन। तो रिक्वेस्टिंग तक तो सब गाइडेड ही रहेगा ना। मैंने ऑफर किया, उसने मांगा, मैंने दे दिया, दैट इज रिक्वेस्टिंग। लेकिन मेरे टांग में दर्द हो रही है, मुझे अपनी मम्मी को बताना है, मम्मी तो नहीं पूछेगी ना, क्योंकि मम्मी को नहीं पता है मेरी टांग में दर्द हो रहा है, तो मुझे खुद से जाके मम्मी को बताना पड़ेगा। दैट इज रियल कम्युनिकेशन। तब हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें बियॉन्ड रिक्वेस्टिंग भी कुछ करना चाहिए। पहले लॉकडाउन से पहले हमने प्लान किया था, वी वर प्लानिंग कि वी विल हैव अ सीरीज ऑफ सेशंस एंड वी अनाउंस्ड इट। हमने लास्ट टाइम जब वर्कशॉप की थी तब हमने अनाउंस भी किया था। फिर कोरोना आ गया तो सब कुछ स्टिल हो गया। पहले तो हमें थोड़ी हेजिटेंट है, वो हो रही थी कि कैसे करेंगे ऑनलाइन, कभी वर्कशॉप ऑनलाइन कैसे समझाएंगे। देन वी डिड बिगिनर सेशन। उस बिगिनर सेशन में हमने 5 सेशंस किए। फिर काफी अच्छा फीडबैक आया और बच्चे आगे बढ़े। तो हमने वी स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ सेशंस। तो हमने जुलाई में स्टार्ट किया था। उसके बाद ये हमारा थर्ड सीरीज है फॉर पेरेंट्स, नॉट फॉर द चिल्ड्रन, जहां पर हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बिगिनिंग से। स्टार्ट होता है व्हाट इज AAC और एंड होता है पूरा डे टू डे AAC, कम्युनिकेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, डे टू डे प्लेइंग गेम्स, एकेडमिक, सब कुछ। कोई चीज ऐसी एरिया हमें लगा कि ये छूट गया है तो हमने अपने सेशंस और ऐड कर दिए। एक्चुअली हमारी भी लर्निंग अभी चल रही है, हम भी अभी एक्सप्लोर और कर रहे हैं साथ साथ। उससे क्या होता है कि एक वो हमें आइडिया हो जाता है कि शुरू से एंड तक हम अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, कैसे कैसे धीरे 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 हमें बढ़ना है, वो आइडिया हो जाता है। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई थी सेशंस की। और मैं अपने सेशंस में भी बोलती हूँ और बार बार बोलती हूँ, मैं एक आवाज की यूजर हूँ। मेरा बच्चा आवाज यूज करता था, मैंने सीखा, मैंने दूसरे पेरेंट्स को सिखाना शुरू किया। मेरा आवाज की टीम से फ्रेंडली कनेक्शन है, कोई भी प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं है। सो इट इज अ डिस्क्लेमर दैट वी आर नॉट एसोसिएटेड, सनराइज लर्निंग is not associated with Awaz as Awaz. We are friends with Awaz team because क्योंकि हम उनके कस्टमर हैं और वो हमें सर्विसेज देते हैं, वो वाला रिलेशन है। इसके आगे वाला कोई रिलेशन हमारा आवाज टीम के साथ नहीं है। पावरफुल मेरे पास फोन आते हैं ना, मेरे पास फोन आते हैं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करूं भैया। मैं आवाज की टेक्निकल सपोर्ट नहीं हूँ। I am using it for my child, and whatever I have learned in my journey, that is what I am sharing, or we are sharing at Sunrise Learning. That I want to clear. Okay, so this is the device that is giving voice to our children. Yes. Someone very powerful, someone very famous has said that only through communication can human life hold meaning.
So we are you know giving so much meaning by giving AAC to our children, right? Is there anyone else who would like to talk about their journey with Awaaz or with any kind of assisted technology that you've been using? I think Tanisha mom was supposed to be here. Is she here? Ruchi ma'am, do we have time to take some more questions? Yes, we have, but बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो शेयर करना चाहते होंगे, शायद आज नहीं है. Okay. We have Pranay mom, we have Tanisha mom, but I don't see them online. And we Pranay have. mama, if you are there, we want to hear something from you. Bhuvna di, would you like to share your experience with Awaaz? I can see you. Maybe she's gone somewhere else. Next time हमें यही सुनना है, एक्सपीरियंस जानने हैं पेरेंट्स के, कैसा रहा, कैसी रही उनकी जर्नी, जिससे बाकियों को भी समझ में आए कि कैसे यूज करना है. एंड यू नो हम इंक्लूजन की बातें करते हैं मैम. यहाँ पे मैं एक स्कूल में गई थी. जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन. आई हैड विजिटेड DPS पटना अ फ्यू, इनफैक्ट एन ईयर बैक, क्योंकि अब तो कोरोना में यू नो टाइम फ्रीज हो गया है सॉर्ट ऑफ. तो 1 साल पहले गए थे हम लोग. अराउंड आई वाज देयर इन दिल्ली एंड आई हैव अ वेरी बिग ये कि आप लोग इतना आगे बढ़े और हम लोग 2018 में मिले एंड आई वाज लाइक able to learn just the basics. So I'll have to do another session with all of you. So when we came back and I started talking to the parents here, I was able to tell them very little. Subsequently, many of them bought Awaaz, and I hope, and I just wish that some of them would be here today. At least they'll be able to see the Facebook Live. There are people here in Bihar, here in Patna also, who have, since my coming back here, I would say rather, learnt about Awaaz. So, or learnt about augmentative technologies. And there are at least 4 or 5 children here. They are not here right now, but 4 or 5 children who have gone from non-verbal to 10-15 words in a span of 6 months. And that has, you know, it's beautiful to see them today. And उनके साथ benefit बस ये था मैम कि उन्होंने शुरू में start किया. They started it at the very beginning when you know they had just come to AIIMS with speech delays, and subsequently they went back with you know Awaaz in their devices. So I think we can. हमारा भी एक्चुअली यही एक्सपीरियंस है और वंदना मैम ने भी यही सजेस्ट किया कि जितना जल्दी यूज करें. Absolutely. I would like to summarize whatever we have discussed. Absolutely, ma'am. So that कि पूरा एक क्रक्स हो जाए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया. So we started कि what is AAC, जहाँ पर हमने बताया कि AAC is augmentative and alternative communication. ये उन बच्चों को भी फायदा देता है जो नॉन वर्बल है, उनके लिए ये ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन है. और जो बच्चे बोलते हैं थोड़ा थोड़ा लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को, उन बच्चों के लिए ये ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन है दैट एनहांसेस देयर स्पीच. पॉइंट नंबर 1. देन वी डिस्कस्ड अबाउट मिथ्स. बहुत सारे बच्चे 2-3 साल के बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, और वहां पर क्या होता है कि वो लोग डर जाते हैं कि आवाज यूज करने से. अभी तो बहुत छोटा है, अभी से ही आवाज दे दिया तो ये बिल्कुल ही बोलना बंद कर देगा. ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और वो उससे पीछे हट जाते हैं आवाज से. तो आज तो हमने इतना ज्यादा डिस्कस किया है कि आवाज ने कैसे एनहांस किया स्पीच को, मेरे बच्चे की स्पीच को. राघव, देन आहान, देन वीर, देन वी हैव प्रणय, वी हैव तनिषा. बहुत सारे बच्चे हमारे सनराइज के बच्चे, उनकी स्पीच कहीं से भी कम नहीं हुई है, एनहांस हुई है. तो ये स्पीच को हैम्पर नहीं करता है, रोकता नहीं है, एनहांस करता है. रुचि मैम आप म्यूट कर लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे बड़ी मिथ है जिसके कारण हम
एज अ पेरेंट आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है तो आप सही नहीं हो। एज अ पेरेंट हमें, जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे को भी यही चीज आई थी, लेकिन विद एक्सपीरियंस वी learned that yes it is enhancing the speech, ये स्पीच को रोक नहीं रहा है। फिर एक ये रहता है कि बहुत कॉस्टली है, हम इसे कैसे यूज करें। तो हम इतनी थेरेपीज में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, इतने असेसमेंट्स कराते हैं, तो लाइफ टाइम में अगर हमारे बच्चे कोई कम्युनिकेशन टूल कुछ थोड़ा सा स्पेंड करके, थोड़ा सा लगा, मतलब वो लगा के कॉस्ट देकर, अगर मेरे बच्चे को लाइफ टाइम कम्युनिकेशन टूल मिल रहा है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। हम बहुत सारी जगह एज अ पेरेंट आई एम टेलिंग कि इतनी सारी जगह जाते हैं ना कि नाम भी नहीं याद रहते, हम कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ के धक्के खाए हमने, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरा बच्चा आवाज पर डिपेंडेंट हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि क्या वो सारी जगह आईपैड लेकर ही घूमता रहेगा क्या, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। सब बच्चों के हाथ में एक फोन होता है, अगर मेरा बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हाथ में एक फोन रखेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिनको हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है वो हेयरिंग एड लगाते हैं, वो लगा कर ही घूमते हैं ना, तो उसमें कोई हमें बुराई थोड़ी नजर आती है। हम स्पेक्स लगाते हैं, किसी की लेग में प्रॉब्लम आ गई तो व्हील चेयर यूज करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई भी बुराई नहीं है अगर वो मेरा बच्चा उस पर डिपेंडेंट हो भी जाता है। कुछ बच्चों तो नेचुरली वीन ऑफ हो जाते हैं डिवाइस से, और कुछ बच्चों को हो सकता है कि जरूरत पड़े आगे उसको लाइफ टाइम यूज करने की, दैट नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग थिंग। और टेक्निकल एज में हम रह रहे हैं, हर चीज तो फोन से कनेक्टेड है। मैप्स देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं तो भी गूगल मैप देखते हैं, यहाँ से यहाँ 2 कदम चलकर जाना है उसके लिए हम गूगल मैप देखते हैं, शॉपिंग करनी है तो हम शॉपिंग एप्स देखते हैं। हर चीज के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं तो मेरा बच्चा अगर उस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर अपने आप को कम्युनिकेट कर पा रहा है, उसको वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो अपने अंदर से भड़ास जो बोल रहे हैं उसको निकाल पा रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या वो सारे टाइम लेकर घूमता रहेगा। अब तो इतने स्मार्टफोन आते हैं बढ़िया बढ़िया, मतलब अच्छा लगता है उनको घूमने, जब हम जाते हैं हाथ में बड़े बड़े फोन लेके, मेरा बच्चा भी ले जाएगा तो अच्छा ही लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा उसको ले जा साथ में कैरी करता हुआ। और एक मिथ ये है, मैं तो टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, मेरा बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीख रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि मेरा बच्चा तो, उसको एबीसी भी नहीं आती, वो 1 2 3 भी नहीं जानता, वो कैसे बताएगा? आवाज इज टोटली, आवाज और एनी एसी दे आर पिक्चर बेस्ड कम्युनिकेशन। बच्चे को पढ़ना लिखना आना जरूरी नहीं है। जो इस चीज को यूज करने के लिए चाहिए, जो सबसे बड़ी प्री रिक्वेस्ट है, वो बच्चे की एक नीड होनी चाहिए। और वो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग नीड नहीं होगी जिसके बिना वो रह नहीं सकता, जिसे हम रीइंफोर्सर बोलते हैं। तो अगर बच्चे की कोई नीड है तो वहां पर यस वो कैपेबल है उसको यूज करने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो एबीसी जानता हो, 1 2 3 जानता हो। मोटर इश्यूज की प्रॉब्लम भी काफी हद तक आवाज सॉल्व कर देता है, क्योंकि उसकी सेटिंग्स कुछ तरह से है जो मोटर इश्यूज, जो बच्चे स्लाइड वगैरह करने में जिन्हें प्रॉब्लम आती है, तो सेटिंग करने से वो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। और अगर आप एज अ पेरेंट, मुझे ये डाउट है कि मैं तो टेक्निकल सेवी नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे यूज करूँ, मुझे तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आता ही नहीं है। तो आप मुझे सुन रहे हो,
आप ये डॉक्टर श्रुति को सुन पा रहे हो, आप फोन पर कनेक्टेड हो, वो आपने यूज करना सीखा, आपने व्हाट्सएप यूज करना सीखा, गूगल मीट यूज करना सीखा, फेसबुक सीखा। ऐसे ही आप ये भी सीख जाओगे कि ये बहुत बड़ी कोई टेक्निकल चीज नहीं है। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हर इंसान अपनी पिक्चर सेल्फी जरूर लेता है, वो भी तो हमने सीखा ही है ना। वैसे ही हम आवाज भी सीख जाएंगे, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इट इज एज सिंपल एज यूजिंग व्हाट्सएप और a camera of your phone or something like that. It is not a very complicated thing. ठीक है, मैं कैसे करूंगा, मेरा बच्चा तो नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो कोई भी चीज जब इस थॉट के साथ शुरू होती है, मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं होती। और जब ये चीज उल्टा करती हूं, मैं इसे रिवर्स करती हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, मेरा बच्चा कर लेगा। जब हम इस नोट से किसी चीज को शुरू करते हैं तो वी ऑलवेज सी सक्सेस। It might be 10%, it might be 20% for some kids, but it will be there. हम 0 से 5-10 कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे अगर हम इस डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ेंगे कि हाँ मैं और मेरा बच्चा दोनों ही कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक दिन किया, एक महीना नहीं किया, नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। उसका बच्चा तो 2 दिन में सीख गया, मेरे बच्चे को तो साल लग गया सीखते सीखते। Every child is different in the spectrum. Every child, not on the spectrum, but generally हर बच्चा अलग है। कोई 2 दिन में सीखेगा, कोई महीने में सीखेगा, कोई साल में सीखेगा, पर सीखेगा जरूर। पेशेंस रखनी है, गिव अप नहीं करना है। जब हम गिव अप कर देते हैं तो हम दूसरी बार ट्राई करने से भी फिर डर लगता है। तो अगर हम गिव अप नहीं करेंगे, लगे रहेंगे, maybe we have to change the strategies, but we cannot give up. वो आपको ध्यान में रखना है किसी भी चीज में, नॉट इवन आवाज, हर चीज में ही। तो AAC में भी यही ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो AAC में होती है वो है मॉडलिंग। मैं बोल रही हूँ हिंदी में, आप उसे हिंदी में समझ रहे हो। अगर अभी हम बोलें कि हम बातें नहीं बोलेंगे, नहीं वर्बली टॉक नहीं करेंगे, हम चैट करेंगे। मैं टाइप करूंगी, आप भी टाइप करोगे, तो भी हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। अगर मैं अभी कोई ऐसी लैंग्वेज बोलती हूँ, लेट्स सी कि मैं जर्मन में या फ्रेंच में बोलने लग जाती हूँ, आपको समझ आएगी? नहीं आएगी ना। तो AAC एक लैंग्वेज ही है, जैसे थर्ड लैंग्वेज होती है वैसे ही AAC भी एक लैंग्वेज है। जैसे हम एक और लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करते हैं, कई लोगों के घर में मदर टंग रहती है कुछ और, फिर वो उसको या तो बच्चे को इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, फिर मदर टंग सिखाना शुरू करते हैं। वही स्टेप्स जो आप एक नई लैंग्वेज सिखाने के लिए करते हो, वैसे ही स्टेप्स AAC में भी फॉलो होते हैं। और जब भी हम कोई लैंग्वेज सिखाते हैं अपने बच्चों को, एंटी बच्चों को भी, नॉर्मल बच्चों को भी और न्यूरोडाइवर्स बच्चों को भी, तो हम क्या करते हैं, हम वो चीज बोल के दिखाते हैं ना उसे। इसका मतलब ये करके दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो नमस्ते बोला, सत श्री अकाल बोला, तो हम एक्शन के साथ बताते हैं ना कि इसका क्या मतलब है, हम मॉडल करते हैं। AAC में भी मॉडलिंग बहुत जरूरी है। मेरा बच्चा उस लैंग्वेज को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसको वो लैंग्वेज एज एन इनपुट मिलेगी। तो अगर हम उसको यूज करेंगे, हम उसे सिखाएंगे, हम उसे दिखाएंगे, तभी वो भी उसे सीखेगा। नॉट ओनली यू एज अ मदर ही अकेली लगी रहती है मोस्टली, या फिर एक ही पेरेंट लगे रहते हैं या टीचर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। आपकी पूरी फैमिली को मॉडल करना होगा, आपके टीचर्स को मॉडल करना होगा, बच्चे के फ्रेंड्स को मॉडल करना होगा, तब वो बच्चा जल्दी सीखेगा। जितनी ज्यादा मॉडलिंग होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी ज्यादा बच्चा सीख जाएगा। और सभी बच्चे जल्दी ही सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं सीखेगा। ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ही क्या बोलते हैं,
रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। और जब हमारा अपना मोटिवेशन होता है किसी चीज़ के पीछे, उसको यूज़ करने से हमें कुछ फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स होते हैं, तो हम वो चीज़ जल्दी सीखते हैं। वही आपको उसे अपने बच्चे के लिए बनाना है, उसको उसके बेनिफिट्स दिखाने। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। हाँ, वंदना मैम ने जैसे बार बार यही बात बोली कि टफ नहीं है, आसान है, सीख सकते हैं। इसी के साथ अभी हम ये सेशन क्लोज करेंगे। थैंक यू डॉक्टर श्रुति, थैंक यू वंदना मैम। अगर किसी के क्वेश्चन रह गए हो, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, आपको म्यूट करना पड़ेगा। हमारे सनराइज लर्निंग के पेज पे कमेंट पे भी लिख सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हूँ, अपने पेरेंट्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप, अगर मैं हूँ, अगर मैं आप पोस्ट कर सकता हूँ, आप सनराइज लर्निंग के फेसबुक पेज पर, जहाँ पर ये लाइव है, वहाँ पर अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो। रुचि मैम, कैन यू शेयर द ईमेल आईडी ऑफ सनराइज लर्निंग? यू कैन राइट एन ईमेल। इसके नीचे ही मैं अभी ईमेल भी टाइप कर दूंगी, हमारे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा सारा इंफॉर्मेशन। आप अपनी क्वेरीज सनराइज लर्निंग की ईमेल आईडी पर पोस्ट कर सकते हो, और आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। एज अ पेरेंट टू अ पेरेंट, आई एम ऑलवेज देयर 24/7 अवेलेबल फॉर माय पेरेंट्स। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Shruti. Thank you, ma'am. So we can say bye bye. Bye bye. I think. Yeah, sure.